کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ لیکس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ڈل جھیل کی بڑے پیمانے پر صفائی مہم جاری ہے۔ روزانہ تقریباً 120 ٹن گھاس پھوس اور 1.5 ٹن سے زیادہ کچرا نکالا جاتا ہے۔ جھیل کی صفائی کے لیے 400 سے زیادہ مزدوروں کی خدمات حاصل کی گئی ہے۔ پیش ہے ہمارے چیف کرسپونڈنٹ پرویز بٹ کی یہ رپورٹ۔ کرونا وبا اور لاک ڈاؤن کے دوران شہرائے آفاق ڈل جھیل کی صفائی کا عمل متاثر ہوا تھا اور جھیل کافی آلودہ ہو گئی تھی۔ اب جبکہ کووڈ کی دوسری لہر ختم ہو گئی ہے اور نئے کیسز میں کمی دیکھی جا رہی ہے، لیکس ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ڈل جھیل کی اندرونی اور بیرونی صفائی کے لیے بڑے پیمانے پر مہم لانچ کی ہے۔ جھیل کے ایک بڑے حصے کی صفائی کی گئی ہے اور ابھی بھی کئی حصوں کا احاطہ کرنا باقی ہے۔ LDA کے سینئر عہدیداران اور VC ڈاکٹر بشیر احمد صفائی مہم کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس کام کے لیے اضافی مشینری اور افرادی قوت لگا رہے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی ہمارا منصوبہ ہوتا ہے کلیننگ کے حوالے سے یا ڈیویڈنگ کے حوالے سے، وہ اس بات پر مبنی ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ لائیو لیک ہے، اس میں ویڈ کیسے انفیسٹ ہو جائے گی، ویڈ کہاں سے گرو ہوگی۔ تو اس سلسلے میں اس سال کا جو منصوبہ ہے اس میں ہم نے تقریباً 15 سے 16 مشینیں اور ڈپلوائے کی ہوئی ہے، خاص کر للی ایکسٹریکشن کے حوالے سے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں ڈپلائیڈ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم چونکہ اس ٹائم پہ واٹر لیول بھی کم ہے، تھوڑا سا اور ویڈ گروتھ دیکھی گئی ہے کچھ ایریاز میں، تو اس کے لیے بھی ہم لیبر موبلائز کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آیا 2 شفٹس میں کام ہو سکتا ہے۔ حکام نے صفائی مہم کے دوران 14 واٹر ماسٹرز کو استعمال میں لایا ہے اور 400 مزدوروں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ ڈاکٹر بشیر احمد کا کہنا ہے کہ اس صفائی مہم کے بعد ڈل مزید خوبصورت اور صاف نظر آئے گی۔ دیکھیے، تقریباً 120 ٹن کے قریب نکلتا ہے۔ ویرینگ اس ٹائم پہ ہمارا بہت زیادہ موبلائز لیبر ہے، تو اس میں اور بھی یہ انکریز ہو رہا ہے۔ لیبر کے حوالے سے میں بتاؤں، تقریباً 300 سے 400 لیبر روز ڈپلوائے ہوتے ہیں۔ مشینیں ہمارے پاس 15-16 ہیں جو ہم نے آؤٹ سورس کے تھرو لگائی ہوئی ہیں، اپنی مشینیں ہمیں 4-5 لگائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی سالڈ ویسٹ کے حوالے سے ہمارا تقریباً 1 سے 1.5 ٹن پر ڈے کا آؤٹ پٹ نکلتا ہے، جو ڈل کے انٹیریئر سے ہم نکال کے SMC کے تھرو ڈسپوز کرتے ہیں۔ ڈل جھیل کی صفائی احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آبی حیات کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ مقامی افراد نے LDA کی اس مہم کی ستائش کی، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ صفائی مہم کا سلسلہ جاری رہے اور اس کے ثمرآور نتائج برآمد ہونے چاہیے۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے پرویز بٹ کی رپورٹ۔ لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وائس چیئرمین ڈاکٹر بشیر احمد بٹ نے ڈل جھیل کے کیچمنٹ علاقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے ڈل جھیل کے کھمبر، بدروا اور ڈگنیبل کا دورہ کیا، وہاں کیے گئے کاموں کا جائزہ لیا۔ وی سی نے کہا کہ کیچمنٹ میں حال ہی میں شروع کیے گئے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت رواں برس 62,000 پودے اور کمپوسٹ پٹس لگائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد ڈل جھیل کے کیچمنٹ ایریا میں مزید 220 کمپوسٹ پٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ ڈائریکٹر PGTI سمپت چاری کا کہنا ہے کہ ہندوستانی گولفر بہت جلد اولمپکس میں میڈل حاصل کریں گے۔ سمپت چاری نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران گولف چیمپئن شپ کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جدید اور خوبصورت گولف کورسز ہیں اور اس سے اچھے کھلاڑیوں کی تیاری میں مدد ملے گی۔ پروفیشنل گولفرز ٹور آف انڈیا PGTI کی جانب سے کل سے JK اوپن گولف چیمپئن شپ شروع ہو رہی ہے۔ ٹورنامنٹ ڈائریکٹر PGTI سمپت چاری نے کہا کہ رائل اسپرنگز گولف کورس سری نگر میں کل سے شروع ہو رہی چیمپئن شپ میں اولمپک گولفرز سمیت 126 پروفیشنل گولفرز حصہ لے رہے ہیں۔ سیکرٹری ٹورزم سرمد حفیظ اور ڈائریکٹر جے نیتو نے PGTI کی ستائش کی۔ سرمد حفیظ نے کہا کہ کشمیر میں گولف اور گولف ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کشمیر میں حالیہ دنوں شروع کی گئی گولف اکیڈمی کا تذکرہ کرتے ہوئے سرمد حفیظ نے کہا کہ عصری اور خوبصورت گولف کورسز کے ساتھ کشمیر گولف میں ملک کا مرکز بن سکتا ہے۔ We are not as strong as European tour or the American tour. But over a period of time, like I just mentioned initially, we need good golf courses like Royal Springs.
Good golf courses produce good golfers. You don't have that. Coming up now very, very slowly. Because of good golf courses like what we have out here, we have 5 or 6 in the country, players are exposed to much, much better playing facilities, which are not there like to have abroad. But we are definitely improving. We are trying to find out, I'm sure that we will find some gifted players, some people who are gifted, who take to the game, who have a natural flair for the game, and we'll find out who are these youngsters out of the lot that we are training, and we will take them forward. And I'm sure that the PGTI would also support us with all these beautiful golf courses here, the inspiration of all such wonderful players coming and playing here, and the Golf Academy, we will be able to produce international quality golfers as well. The golf course is in amazing condition. It's good to see from what it was in 2014 and now definitely there is an improvement and it's looking nice and we are very excited to go there and start the day one. बैनुल-अक़वामी गोल्फर शितेज नवेदकोल न सिर्फ एक अच्छे गोल्फर हैं बल्कि अपनी मादरी ज़बान से काफ़ी लगाव रखते हैं। शितेज ने अपनी मादरी ज़बान कश्मीरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शितेज ने नौजवानों को गोल्फ और मादरी ज़बान के हवाले से पैगाम दिया। शितेज ने न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद से बात की। गोल्फ कोर्स में जो टूर्नामेंट हो रहा है, इसको लेकर आप किस तरह का? रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स बहुत ही अच्छा गोल्फ कोर्स है, ट्रूली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का गोल्फ कोर्स है, क्योंकि जो फेयरवेज है और जो ग्रीन्स है उसकी जो कंडीशन है दे आर बहुत अच्छे कंडीशन में है। एंड मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी टू विन अ टूर्नामेंट हियर, सो आई एम काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। अपने घर में जीत ज़्यादा अच्छी लगती है? हाँ जी, दैट इज़ वो सच है। आप बॉम्बे में पैदा हुए लेकिन आप कश्मीरी बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसा कैसे? माय मदर एंड फादर, मेरे मदर एंड फादर कश्मीर के हैं एंड मैं कश्मीर का ही हूँ। नहीं, आप कश्मीर के ही हैं लेकिन बाहर पैदा हुए, बाहर पले बड़े, फिर भी अपनी ज़बान के साथ जुड़े रहे। हम घर पे कश्मीरी में ही बात करते हैं, मोस्टली कश्मीरी एंड इंग्लिश, दैट्स इट। कश्मीरी में ही बात करते हैं ज़्यादा। कहाँ खेले आप और आगे क्या इरादे हैं? मैं काफ़ी जगह खेला हूँ, एशियन ऑलमोस्ट मोस्ट एशियन कंट्रीज़ में और मेक्सिको, यूएस में भी खेला हूँ और आगे जाके मैं यूएस टूर पे परमानेंटली खेलना चाहूँगा, क्योंकि वही द बिगेस्ट टूर है इन द वर्ल्ड, तो वहाँ खेलना विल बी द आगे का प्लान। तो नए गोल्फर्स जो हैं, बच्चे गोल्फिंग खेलना चाहते हैं, उनसे एक मैसेज, और जो कश्मीरी बोलना भूल जाते हैं उनके लिए आप एक मैसेज हमारे कैमरा को। अगर माज छुन लगान तेल हेकब प्रैक्टिस से ज़्यादा करे, अगर माज छुन लगान तेल छुन माज लगान प्रैक्टिस करने के बे जूता प्रैक्टिस करब त्युती ज़्यादा जान गथा। जिसके रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में छु इन द कश्मीर गोल्फ कोर्स में छु एकेडमी गुमुत शुरू हुई, तो आई थिंक स्कूल चिल्ड्रन अस अभी जब स्कूल चिल्ड्रन करन शुरू गिन तिमन खतर आस वारिया जान के इस खतर छु वारिया मैदान छु वारिया सो छु वारिया इम्पोर्टेंट। थैंक यू। ये थे क्षितिज, जो बाहर एक तो गोल्फ इंटरनेशनल प्लेयर है ही, दूसरा ये कि उन्होंने बाहर पैदा हुए, कश्मीर से बाहर पैदा हुए और फिर भी अपनी मादरी ज़बान कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। नूराबाद कुलगाम के पहाड़ी इलाके मिंजगाम से हालन जाने वाली अहम राब्ता सड़क खस्ताहाली की शिकार है। महकमे PMGSY ने 2015 में इस काम को हाथ में लिया था, ताहम रोड को मुकम्मल नहीं किया गया। रोड के किनारों को भी महफूज नहीं किया गया है। लोगों को रोड के हवाले से काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। बर्फबारी के दौरान इलाके का राब्ता मुनक़ता हो जाता है। लोगों ने पीने के पानी और माकूल तिब्बी सहूलियात फराहम करने के हवाले से भी हुक्काम से मुदाखलत की अपील की है। PMGSY के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि सड़क के लिए दरकार फंड्स के हवाले से हुक्काम से बात की गई है। यहाँ हमारे डिलीवरी केस होता है, जब यहाँ से हम उसको कंधे पर उठा के मजगाम ले जाते हैं बर्फ में, वो रास्ते में मर जाता है। 3-4 केस हमारे ऐसे हो गए। किसको पानी का हमारा हकवास हमारे शिकम से जा रही है लाइन, लेकिन उसका हमारा कनेक्शन नहीं है। हालत को हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं है हालत की। हमें रोड का हालात देखो, अगर फार फलांग है, हर वक्त गवर्नमेंट ये कहती है, सरकार का कहना ये होता है कि जो फार फलांग एरिया है उनके लिए हम ज़्यादा कोटा भेज रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जाता कहाँ है। गुजारिश यही है कि DC साहब से कि जो हमारा रोड है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस रोड की मुश्किलात है,
क्योंकि यहाँ जब डिलीवरी केस कोई होता है हम कांधे पे उठा के चारपाई पे उठा के फिर हम मजगाम नहीं पहुँचा सकते। कभी आके हम रास्ते में बैठते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ, ये हमें बहुत बड़ी मुश्किल आता है। गाड़ी की सर्विस नहीं है, गरीब लोग हैं बेचारे, दिन को मजदूरी करते हैं और रात के लिए खाना लाते हैं। तो मेरी मोहतबानी गुजारिश है कि डीसी साहब से, गवर्नर साहब से और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब से हमारी यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप तवज्जो दो, आपको अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना है। रोड का क्या स्टेटस है? हाँ, इसमें कंप्लीट हुआ है, ये डैमेज रिपोर्ट सबमिट हुआ है, इसका रिन्यूअल कोड के लिए पैसे आएंगे। जहाँ जहाँ डैमेज हुआ है उसके लिए पैसे हमने मांगे हैं जी। हेलो, वो हमने डैमेज रिपोर्ट सबमिट किया है। प्रायोरिटी बेसिस पे मैंने चीफ साहब को कहा इसके लिए फंड साहब दे दो हमें, क्योंकि इसमें ये पब्लिक डिमांड बहुत ज्यादा है। तो मैं फिर भी चीफ साहब से बात करूंगा तो वो देखेंगे क्या करेंगे। बाग़ महताब के कारपोरेटर बशीर अहमद ने आवाम से अपील की कि वो तरक्की के काम में उनका साथ जुड़ जाएं। बाग़ महताब में एक सड़क की तामीर पर लोगों ने खुशी का इजहार किया और ज़ाती दिलचस्पी दिखाने पर कारपोरेटर का शुक्रिया अदा किया। ये सड़क काफ़ी खस्ता हाल थी और पैदल चलने के काबिल भी नहीं थी। 2 दिनों से इस पर सिटी रोड्स के जरिए काम हो रहा है। सही होगा ना, जितनी भी स्कीमें वहां है ना, आपको कोई चीज बाकी रहेगा ही नहीं। लेकिन वो सिर्फ हमारे तक उनका स्कीम उन्होंने दी है, लेकिन उसको ग्राउंड मतलब तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो हमारा काम है। इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे मेरी तरफ से आपको कभी भी जो है, आप जब रात को मेरे को फोन करें, दिन को फोन कभी भी करें, मैं उसी वक्त आपकी इधर हाजिर। त्राल के दूर दराज इलाकों में मरकजी मावनत वाली स्कीम के तहत महकमे PMGSY सड़कों पर मैकडम बिछाया जा रहा है। दुधमर्ग से कहलल तक की राब्ता सड़क पर भी मैकडम बिछाने का काम जारी है। ये सड़क कई सालों से खस्ताहाली की शिकार थी। लोगों ने मरकजी सरकार और महकमे का शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जैनापुरा शोपियां में सर्जरी का अमल शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर समीउल्लाह और उनकी टीम ने एक खातून की सर्जरी करते हुए उसका रहम निकाल दिया। अस्पताल हुकाम के मुताबिक हफ्ते में 1 दिन सर्जरियां अंजाम दी जाएंगी। दूर दराज इलाके में सर्जरी की सहूलत शुरू करने पर लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। With the help of BMO Sahab, we have started gynecological procedures in CSC Zainapura on 1 day every week, and today we have done first abdominal hysterectomy and repair in CSC Zainapura. Okay, this is the first surgery in this remote area. Patient is absolutely normal, vitals are normal. जागिर त्राल में आवारा कुत्तों के हमलों में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। इलाके में खौफ हरास का माहौल है। लोगों का कहना है कि इन कुत्तों को श्रीनगर से लाकर यहां छोड़ दिया जाता है। सब जिले में अब कुत्तों की तादाद में काफी इजाफा हो गया है। लोगों ने इस हवाले से इकदाम उठाने की अपील की है। बचन बन स्कूल गई यल बचन बन स्कूल त्रा कहें तो बुजुर्गन बन नबर नीन कुदरती जना नफर मोज बेन मन वन नबर नीन कहें घर नबर 3 नफर खे तान अच्छे तरह फिक्रे हून कुछ त्रा गाँव मज कर गुजारिश कटो सा हून ये करो क्या कार्रवाई अपील फना कर क्या अहन अनान शहर पे हून तो त्रा गाँव मज यूत काल ये 3-4 खे वन कथ सह गाँव मज नचन ओर योर कमिश्नर साहब जो हमारे SMC श्रीनगर से बात की है तो उन्होंने ये कहा कि उनकी डायरेक्शन जो है कि कहीं भी जो भी उनको श्रीनगर एरिया में ज़्यादा नंबर में कहीं भी अगर कुत्ते पाएंगे तो उनको आप रूरल एरिया में नहीं भेज सकते, खासकर त्राल की तो बात ही नहीं। तो कहा कि मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे रखी है, लेकिन मैं फिर भी इंक्वायर करूँगा कि अगर ऐसा कहीं पे है तो स्ट्रिक्ट उनकी इंस्ट्रक्शन होगी हमारे कमिश्नर साहब की। किश्तवाड़ और बारामूला में बादल फटने की हालिया वाक़यात से मकामी लोगों में खदशात पैदा हो गए हैं। SDRF के कमांडेंट जनरल VK सिंह ने कहा कि SDRF बादल फटने या मिट्टी के तोदे खिसकने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मौसर तौर पर निपटने के लिए तैयार है। सिंह ने कहा कि कोविड की मुमकिन तीसरी लहर के तनाजुर में SDRF ने 40 से ज़्यादा अफराद को तरबियत फराहम की है। अभी किश्तवाड़ में जब हुआ, बारामूला में हुआ, दोनों जगह SDRF टीम और NDRF टीम्स रश करी गई। काफ़ी लंबे समय से जो भी ऑपरेशनल कार्रवाई है वो की गई। तो उस तरह के लिए ये कंटिन्यूस being continuously prepared is a part of our duty. थर्ड वेव के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो कितना तैयार है डिजास्टर मैनेजमेंट या SDRF हैंडल करने के लिए उसको, क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आ सकती है। I am not commenting on the third wave, it is a premature, but
in regard to preparation जो आपने पूछा है, enforcement में हमारा शाना बाशाना जो रोल है वो पूरा किया जा रहा है, अवेलेबल है फॉर द टास्क. एंड जब हमने अपना मैन पावर ट्रेन किया है, सो वी आर डेफिनेटली हैविंग एन एज. हमने इस ड्यूटी को एक कोविड का जो चैलेंज था उसको अपॉर्चुनिटी ट्रीट किया, बिकॉज अब तक चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ में बायो एमरजेंसी एक जो कि सिंपली आपका ओवरऑल और किट रिलेटेड है, इट इज़ मोर लाइक अ नर्सरी एक्टिविटी कंपेयर्ड टू PhD, and COVID is of a higher nature. Therefore, the training and equipment and orientation for COVID is very specific and has to be of a different footing altogether. ज़ाहिर सी बात है कि we are there to assist the administration in every way.